اچھا نغمانہ صاحبہ، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، امریکہ کی اسرائیل پالیسی پر بڑھتی ہوئی تنقید کچھ عرصے سے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ وقتی دباؤ ہیں یا مستقبل میں ہم پالیسی شفٹ یا پاور شفٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک پالیسی شفٹ کا تعلق ہے تو دیکھیں، بہت عرصے سے جو لوگ یورپ کو اچھی طرح واچ کر رہے ہیں اور مڈل ایسٹ وغیرہ کو واچ کر رہے ہیں، بات بہت واضح نظر آ رہی تھی کہ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ میں ایک سارٹ آف اسپیس آنا شروع ہو گیا ہے اور دوری بڑھ رہی ہے اب یورپ اور امریکہ کے درمیان، خاص طور پہ تین ایشوز پہ: ایک فلسطین کے ایشو پہ، ایک جی افغانستان جی کے ایشو پہ، اور ایک ایران کے ایشو پہ۔ اور اب کیونکہ یورپ بھی یہی سمجھتا تھا کہ ساری جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ امریکن ایجنڈے پہ لڑی گئی ہیں، اور پیسہ جتنا بھی استعمال ہوا ہے وہ زیادہ تر یورپینز کا استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے، چاہے وہ مائگریشن ہو، چاہے اسلاموفوبیا بڑا ہو، چاہے جو کچھ ہو، وہ اور اکانومیز جن کی زیادہ خراب ہوئی ہیں وہ یورپینز ہے۔ اسی بالکل طرح ایسے اب یہ جب سے غزہ میں آپ نے جینوسائڈ دیکھا، اور جب سے آپ نے دیکھا کہ کس اب دھڑلے سے کھل کے اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ کا حصہ بھی آتا ہے، باقی مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے، گلف کے کنٹریز کے حصے آتے ہیں۔ تو آئی تھنک اب ایک سوچ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی ہے کہ یہ بیسیکلی سیکیورٹی تو گلف اسٹیٹس کے لیے نہیں تھی، یہ تو اسرائیل کے لیے تھی، اور بیسکلی ایجنڈا پیچھے یہی تھا کہ یہاں پہ گریٹر اسرائیل بنایا جائے۔ یا آپ بالکل دیکھیں کہ بہت تعامل مزاجی کا مظاہرہ کر رہی ہیں گلف اسٹیٹس بھی، کیونکہ وہ پھنسی ہوئی ہیں اس وقت، پیسہ سارا ان کا انویسٹ ہوا ہے امریکہ میں، لیکن ان کا دل اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، بیکاز دے ریئلی وانٹ کہ اپنی کسی طرح انویسٹمنٹس بھی ڈی لنک کریں، وہ جو اتنی آسان نہیں ہے۔ 40-50 سال سے انہوں نے وہاں چیزیں انویسٹ کی ہوئی ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں وہاں، ان کی 53 ٹریلین ڈالرز کی ہیں، دفاعی معاہدے ہیں 256 ٹریلین ڈالرز کے، تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ بٹ سوچ میں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ نہ اس وقت یورپ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ یہ جنگ لڑے، اور نہ ہی اس وقت باقی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے، چاہے وہ چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے وہ گلف اور مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس ہوں، چاہے وہ ادر دین انڈیا باقی ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہوں، تو سب کا ایک ہی اس وقت آئی تھنک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ناجائز ایک وار ہے، اور یہ بالکل اسرائیل نے بیسیکلی اپنے ٹرمپ صاحب کو کھینچا ہے اس وار کے اندر، لیکن وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے وار پہ۔ اسی لیے دیکھیں کہ اب جو بھی بیانات آ رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بڑے بوکھلائے ہوئے بیانات ہیں امریکہ کے۔ بالکل بالکل کبھی وہ ٹھیک کہہ چین رہی کو ہیں کہتے ہیں، کبھی یورپین کنٹریز کو کہتے ہیں کہ آئیں جی آپ ہماری مدد کریں، آپ گلف آپ کا تیل بھی یہاں سے جاتا ہے تو آپ بھی اپنے جو ہے شپس بھیجیں یہاں۔ اور پھر ایک دن میں نے ان کا ابھی 2 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو اپنے جہاز وہاں بہت ہیں۔ وہ کوئی 5-7 منٹ کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے 5-6 مواقف اپنے جو ہے وہ بدل دیے۔ تو اس وقت بالکل آئی تھنک دنیا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مجھے تو کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اس کے بہت اور اس لانگ جنگ میں ٹرم خاص طور آپ پر کو ہم نے دیکھا، آپ نے بالکل ٹھیک امپیکٹ بات کی ہوگا۔ نغمانہ صاحبہ، اس جنگ میں ہم نے خاص طور پر دیکھا کہ دنیا، خاص طور پر امریکہ کے اپنے اتحادی، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے ہمیں۔ اچھا نغمانہ صاحبہ، ایران جنگ اور غزہ میں جتنے انسانوں کا قتل عام کیا گیا، اور خاص طور پہ تو غزہ میں جینوسائیڈ کیا گیا، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اقوام متحدہ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہم نے ان اداروں کی ناکامی دیکھی ہے ان تمام جنگوں میں، وہ چاہے غزہ وار تھی یا کچھ ایک دو اور وارز اسی طرح کی ہوئیں جس میں ہم نے ان اداروں کی ناکامی دیکھی ہے۔ بڑی طاقتوں کے سامنے یہ ادارے اتنے بے بس کیوں ہیں؟
देखें, इसका बड़ा मेरे लिहाज से तो एक सिंपल सा जवाब है कि 92 ऑनवर्ड आपने देखा कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया था, और जो अमेरिका बहादुर चाह रहे थे वही हो रहा था। और यहाँ तक नौबत आ गई कि हर चीज के ऊपर, जो चाहे वो मल्टीलैटरल हो चाहे वो वॉर्स हो, आपने देखा कि अमेरिका ने अपनी हठधर्मी की और अपना वीटो इस्तेमाल किया। अब गजा में भी जो कुछ हुआ उसमें क्या था? सबसे ज्यादा वीटो जो किसी एक कौम ने इस मसले के ऊपर किया वो अमेरिका था। लेकिन अमेरिका था, आई बिल्कुल। थिंक कि गजा में जो हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था। और अब आहिस्ता हम्म। आहिस्ता आप देख रहे हैं कि लोग अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं, और टाइट चेंज होती नजर आ रही है आपको। क्योंकि देखिए, जब हम्म। तक एक पावर का की ताकत रहेगी और उसके पीछे आपके जो बाकी यूरोपियन ममालिक हैं, दो यूरोपियन ममालिक हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो उनके साथ खड़े रहेंगे, तो 3-2 हो जाता है वोट सिक्योरिटी काउंसिल में। तो वो जाहिर सी बात है खींच के अपनी तरफ लेके चले जाते हैं सब चीजें। और यूनाइटेड नेशंस को और इदारों को इतना ज्यादा मजबूत नहीं रहने देते। खुद ये इन हम्म। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको इरोड करने के लिए, इनकी एफिकेसिटी को इरोड करने के लिए सबसे बड़ा काम तो अमेरिका ने खुद किया है। लेकिन अब क्योंकि खुद अमेरिका की पोजीशन और रोल क्वेश्चन होना शुरू हो गया है, और बाकी जो ममालिक हैं, जैसे अब यूरोपियन ममालिक भी मल्टीलैटरल की बात करना शुरू हो गए हैं, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात करना शुरू हो गए हैं। चीन और रूस तो वैसे ही मल्टीलैटरलिज्म की बात बहुत भरपूर तरीके से कहते हैं। फिर हमारी जैसी कंट्रीज हैं जो हमेशा कहती हैं कि जी मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रांग रहना चाहिए और इन इदारों को बिल्कुल। मजबूत होना चाहिए, इनकी होनी चाहिए, ताकि ये यहाँ जो हठधर्मी है अमेरिका की ये कम हो। तो आई थिंक ये जो गजा में हमास ने शुरू कर दिया, वो उस वक्त भी जब ये शुरू हुआ, पहला अटैक हुआ हमास का, तो मैंने कहा था और बहुत सारे लोग कहते थे आप क्या बात कर रही हैं, कि दिस इज प्रोबेबली द बिगिनिंग ऑफ द एंड। और अब आपको वो नजर आ रहा है कि इसराइल और अमेरिका की बहुत ज्यादा पोजीशन डाइल्यूट हो गई। और मैं इससे बिल्कुल थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूं कि जी गल्फ और मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो लोग ईरान के साथ हैं और हुक्मरान ईरान के साथ नहीं। आई थिंक वो ईरान के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन वो फंसे हुए हम्म। हैं। आई थिंक फंसे हैं। रियलाइजेशन शुरू हो गई है, लेकिन वो इस बुरी तरह इस चुंगल में फंसे हुए हैं और उनके सारे एसेट वहां पे हैं कि वो एकदम तो नहीं निकल सकते। बट आई थिंक द वेरी फैक्ट के जो अमेरिका चाह रहा था कि गल्फ स्टेट्स, मिडल ईस्ट की कंट्रीज का ईरान के साथ लड़ाई हो जाए, डायरेक्ट अटैक्स होने शुरू हो जाए, वो देखे नहीं हुए। हम्म। तो इसका वो मतलब नहीं ये हुए। है कि बारी और अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो ये नहीं है कि ये और सारे इसको बिल्कुल इसको हम अमेरिका की नाकामी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल उस टाइम में जो नाकामी। चाहा था कि गल्फ कंट्रीज इसमें शामिल हो, वो नहीं हुआ। अच्छा नुकमाना साहिबा, इस जंग में हमने चाइना और रशिया की भी सिफारतकारी को खामोश सिफारतकारी ही कहें ज़्यादा बेहतर है, इस अंदाज में देखा है। इसको आप क्या कहें, ये किसी बड़े स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के इंतज़ार में हैं, या जैसे अभी सबरेज साहब भी कह रहे हैं कि चाइना इनडायरेक्ट ईरान को सपोर्ट तो कर रहा है? देखें, जहां अगर आप थोड़ा सा तारीख पे नजर रखें, तो चाइना और रशिया हमेशा से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जेसीपीओए का भी एग्जाम्पल है। उससे पहले देखें 2000 ये 6 की बात है या 7 की बात है, जब उसको कहते थे मदर ऑफ ऑल डील्स, वो $100 बिलियन की जो है वो चीन ने ईरान के साथ तेल का मुआहदा किया था। और वो उस वक्त था जब बिल्कुल भरपूर सैंक्शंस में था ईरान। और उस वक्त से इनकी कोऑपरेशन चल रही है, और अब तो कोऑपरेशन काफी ज्यादा है। बट जैसे रूस भी यही करता है, और चीन का तो खैर ये उन्होंने तो मास्टर किया हुआ है
खामोश सिफारतकारी को, वो मेगाफोन नेशन नहीं है, वो बोलते ज्यादा नहीं है और ना बयानात ज्यादा देते हैं। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन को लेके उसे इम्प्लीमेंट हैं। और इस वक्त भी आप देखें, अभी पेट्रो डॉलर्स की सालिक साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि अंडर थ्रेट तो है, क्योंकि एससीओ में अगर आप देखें ऑलरेडी युआन में चीजें हो रही हैं ऑलरेडी। जो स्विफ्ट का सिस्टम है वो बाईपास हो चुका है इन कंट्रीज में, क्योंकि चाइना का अपना क्लियरिंग हाउस है जिसके थ्रू जी जी। अब और बाकी कंट्रीज जो हैं ये कर रही हैं। एक दफा सऊदिया ने कहने की कोशिश की कि जी हम जो हैं वो युआन में करेंगे या कुछ, तो काफी बीच में हालात उनके जाके खराब हो गए, लेकिन अब कुछ थोड़ा सेटल्ड है। तो इवेंचुअली तो देखें ये चीजें होंगी कि डॉलर साइडलाइन होगा। आप देखें कि जो रशियन और इंडिया का कोऑपरेशन सारी चल रही है जी जी। वो इंटरेस्टिंग है, वो डॉलर्स में नहीं हो रही, ना वो रूबल्स में हो रही है। जो प्रोजेक्ट्स रूस कर रहा है इंडिया में, उन्होंने कहा जी छोड़े सारा कुछ, आपने जो हमारे पैसे देने हैं वो रुपयों में आप हमारी कंपनीज को दे दे, बात खत्म हो गई। तो बहुत बॉर्डर ट्रेड शुरू हो गई हैं, ब्रिक्स खुद ये बात करनी शुरू हो गया है, और इवेंचुअली ब्रिक्स की करेंसी आ ही जाएगी। और अफ्रीका में बहुत कंट्रीज हैं जो युआन में अब डील कर रही हैं चीन के साथ। तो चेंज तो इज ऑन द वॉल। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, उनको अब अमेरिका को दुश्मनों की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने वो खुद पूरी अपने अपनी दुश्मन हिस्ट्री हैं। में और जिस तरह ज्यादा अब ये बात भी जोर बनाए हैं, पकड़ती जा रही है और कि ट्रंप ईरान में साहब ने रजीम। लास्ट कील लगा दी है। जी जी। अच्छा, अब जी, ये बात भी जोर मैंने कहा पकड़ रही ना है कि कि अब देखिए ईरान में ईरान ने रजीम चेंज से पूरी ज्यादा तरह खुद उनको। अमेरिका में रजीम चेंज की जरूरत है। मैम आप अपनी बात कर लें, मैं जी क्योंकि मैं भी बिल्कुल बीच में ही जरूरत। बोल रही थी तो दोनों की बात मिक्स हो रही थी। जी जी, आप अपनी बात नहीं कंटिन्यू नहीं, करें। मैं ये कह रही थी कि देखें जिस तरह उन्होंने, उनके तो पहले ही बिल्कुल जो एहदाफ थे वो क्लियर नहीं थे कि अमेरिका करना वहां क्या चाहता है। वो तो सोच जी रहे जी। थे कि जी बाएं हाथ का खेल है, 40 साल से सैंक्शन लगी हुई, कितना कर लेगा। मिसरीड एक तो उन्होंने किया, दूसरा एक वो होता है ना कि आप इतना ज्यादा गुरूर आ जाता है आप में कि आपकी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाती है। इस वक्त यही हुआ है अमेरिका के साथ कि वो सारी दुनिया को कह रहे हैं ये भी मुझे पसंद नहीं, वो भी मुझे पसंद नहीं, तो सारी दुनिया को तो अमेरिका में आप भी पसंद नहीं है। और मुझे अब ये लग रहा है, और ये बहुत लोगों ने कहा है, कि वहां तो रिजीम चेंज नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। लेकिन जी अमेरिका जी। में टर्म इलेक्शंस में आई थिंक बहुत बुरी तरह मार खाएंगे ट्रंप साहब।